Good morning, students. Today we are going to discuss the valence shell electron pair repulsion theory. We had discussed about the Lewis structure of molecules, and we had seen that though we were able to write the structure of the molecules, but Lewis was unable to explain the shapes of the molecules. So I had written here what was the drawback of the Lewis concept, that he was unable to explain the shape of the simple molecules. Now, the valence shell electron pair repulsion theory. So it is also called as VSEPR theory. As I had mentioned, we had taken the first letters VSEPR. VSEPR theory, and this theory was able to explain the shapes of the molecules. By some simple calculation, we can find out. Okay, now we are going to study this in detail. This theory was given by Sidgwick and Powell in 1940. ओके हम पहले इसके कुछ postulates जो है we will go through that 10 postulates. I will tell you 10 points about this VSEPR theory. Then we will discuss the shapes of different molecules. So first Sedgwick and Powell, they gave this theory in 1940, and afterwards it was redefined by two scientists. They were Nyholm and and of course one is Gillespie in 1956. They had redefined this theory. Okay, now we have to focus what were the important points of the theory. This theory says that the shape of the molecule depends on the shape of the molecule depends on the number of valence electron pairs. किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ वैलेंस. Inner electron से we are not concerned. The number of valence electron pairs. अब ये जो electron pairs है, they can be bonded or they can be non-bonded. Bonded or non-bonded. ठीक है? Now, because the electrons are negatively charged, so among them electrons there is a repulsion. Okay, and because of this repulsion they tries to occupy such a position where there is minimum repulsion and they have maximum distance. So we will write the next point. Because of repulsion among electrons. क्यों repulsion हो रहा है? Due to negative charge present on all, है ना? उन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. दे आर प्रेजेंट ऑन द एटम इन द वैलेंस शेल. दे आर प्रेजेंट एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज दे रिपेल ईच अदर. ड्यू टू रिपल्शन अमंग इलेक्ट्रॉन्स दे arrange themselves in such a position, in such a way that they have minimum, इस पे फोकस करेंगे, मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस. उनके बीच में मिनिमम तो रिपल्शन है और मैक्सिमम डिस्टेंस है. सो एज टू प्रोवाइड द मॉलिक्यूल, जो वो होगा, जो मॉलिक्यूल रहेगा उस पोजीशन के अंदर, इट विल हैव मिनिमम, so that the molecule will have minimum energy and maximum stability. ठीक है, इस पॉइंट को वापस डिस्कस कर लेते हैं. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑल आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे आर हैविंग रिपल्शन अमंग ईच अदर, एंड व्हेन दे रिपेल ईच अदर दे ऑक्यूपाई सच अ पोजीशन वेयर दे आर हैविंग मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, एंड इन दिस पोजीशन द मॉलिक्यूल विल हैव मिनिमम एनर्जी एंड द मैक्सिमम स्टेबिलिटी. नाउ the next point, when there are electron pairs present, we are categorizing them in two categories. First is bonded pairs and another one is lone pairs. Bonded pairs which is shared between two atoms, and lone pairs which is not shared, which is present on the central atom only. So when the repulsion is taking place, the repulsion between lone pair it is maximum. Then it is between lone pair and bond pair.
and then it is between bond pair. ये जो रिपल्शन होता है सबसे ज्यादा लोन पेयर पे होगा, देन लोन पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन ऑर्डर. Okay. Now, why the lone pair electrons, they are having more repulsion? So you can think in that way. The lone pair of electrons, they are localized completely on the central atom. और जबकि जो bond pair होता है, it is shared between two atoms. So it is away from the central atom. And जो lone pair होते हैं, they are occupying most of the position, most of the space अराउंड द सेंट्रल एटम. सो जो वो क्लोज होते हैं तो उनके अंदर रिपल्शन ज्यादा होता है. ओके और बॉन्ड पेयर थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है बिकॉज इट इज शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स. सो द रिपल्शन अमंग द बॉन्ड पेयर इट इज लेस एज कंपेयर टू लोन पेयर. सो our next postulate it is this only, the repulsion it is followed in this order: maximum in lone pair, minimum in bond pair, and you can write the reason also because it is localized on the central atom, and the bond pair they are shared between two atoms, so it is away from the central atom. Next point, if the central atom, बहुत important point है, central atom it is having the same atoms, surrounded by the same atoms, surrounded by same atoms or bonded electrons only, bonded pair of electrons. यानी जो हमारा सेंट्रल एटम है, इफ इट इज सराउंडेड बाय द सेम एटम्स और द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ओनली, बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, देन उसका जो शेप होता है इट विल बी सिमेट्रिकल. उसका जो शेप होगा वो सिमेट्रिकल होगा. शेप इज सिमेट्रिकल. ठीक है. एंड इट इज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री. स्टूडेंट्स वीएसए पेयर थ्योरी को बहुत ध्यान से समझेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इट्स going to tell us how the different molecules are having their shapes and how you can predict their shapes. Okay, so be careful when we are studying the different postulates and how to predict the shapes. Now if the central atom is surrounded by, if the central atom is surrounded by different groups, डिफरेंट ग्रुप्स हो यहाँ वहां पे, या फिर या इसको आप एटम्स बोल सकते हो, डिफरेंट एटम्स, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर वहां पे प्रेजेंट है तो जो शेप होगा वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, इट विल बी अनसिमेट्रिकल. जो शेप होगा डिस्टॉर्टेड होगा, जिसको हम बोलते हैं बिगड़ा हुआ, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी इसकी. शेप इज डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री और इरेग्युलर. जो इनके सिमेट्रिकल शेप्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे. डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल्स होंगे. जो बॉन्ड एंगल्स आई विल टेल यू कि वो इस एंगल पे प्रेजेंट रहेंगे तो दे विल हैव मिनिमम रिपल्शन. वो सब यहाँ पे फॉलो नहीं होगा. शेप जो होगा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, इरेग्युलर हो जाएगा, जो ज्योमेट्री है वो इरेग्युलर हो जाएगी. ओके, दैट वी विल सी हाउ बाय टेकिंग वेरियस एग्जांपल्स. नाउ this theory was able to explain the shapes of a large number of p block elements. Shapes of किसके? Most of the p block elements. So shapes of p block elements were explained very clearly with the help of this VSEPR theory. Explain the shapes of the p block elements clearly. Okay, and the next point, but the drawback also was that with this, that the theoretical basis was not explained. The theoretical basis of VSEPR theory regarding the effects of these repulsion
कोई इसका थ्योरेटिकल बेसिस नहीं था, बट कैसे हो रहा है वो एक्सप्लेन नहीं किया था, बस उसने कह दिया था कि हाँ अगर इस तरह से प्रेजेंट है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर तो उनमें रिपल्शन होगा. सो द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ द VSE पेयर थ्योरी रिगार्डिंग द अफेक्ट्स ऑफ द रिपल्शन नॉट एक्सप्लेन्ड क्लियरली. तो ये इसके ड्रॉबैक्स में आ जाता है. Okay, so these are some of the postulates that we are giving us the introduction of the VSEPR theory. Now we are going to see how the shape of the molecule is there if the bonded pairs of electrons are present and the lone pairs of electrons are present, or if only the bonded pairs of electrons are present. Okay, so let's see that. Okay, I had written a table to understand the different examples. We will take different examples. We will take different bond pairs, lone pairs, total electron pairs, and then we will try to understand the shapes of the molecules on the basis of VSEPR theory. So first here, I am taking the electron pairs. If there are two electron pairs, then how we can write the shape? If the number of electron pairs are 2, that means the molecule, it is written like AB2. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं 2 और मॉलिक्यूल कैसे हमने लिखा है AB. ठीक है, नाउ इफ द 2, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है बोथ ऑफ देम आर बॉन्ड पेयर्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 and none of them it is lone pair, so we will write 0. Now how they will arrange, let's see over here students. देखो दिस इज द सेंट्रल एटम. अब दोनों जो बॉन्ड पेयर्स हैं, द बॉन्ड पेयर्स अराउंड दिस देयर आर 2. अब व्हाट इज द पॉसिबल ओरिएंटेशन अराउंड दिस सेंट्रल एटम वेयर दे आर हैविंग द मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस? तो वो यही ही पॉसिबल है कि दे शुड बी प्रेजेंट एट द 180 डिग्री एंगल. So we will write down the two bond pairs, they will arrange in this way. That means they are having the, कौन सा शेप हो गया इनका? लीनियर. सो वी विल राइट डाउन देयर शेप विल बी लीनियर एंड द बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं BeCl2. ठीक है, BeCl2 का आप स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो B इट इज हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन Cl के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड दीज two bonds they will be oriented at 180 degree angle to each other and the shape of the molecule will be linear. Okay, अब हम second example ले लेते हैं where we are taking this one. number of electron pair हम लेंगे 3, AB3. ठीक है, AB3 टाइप का where the bond pairs are 3 एंड द लोन पेयर्स आर 0. यानी जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, जो तीनों प्रेजेंट है बॉन्ड पेयर्स दे आर फॉर्मिंग द बॉन्ड्स. ओके, अब जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले एग्जांपल BF3 का. यू कैन इमेजिन बोरॉन इट इज हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इट इज कंबाइनिंग विथ 3 एटम्स, दैट मीन्स इट इज हैविंग 3 बॉन्ड पेयर्स. ओके, अब जब 3 बॉन्ड पेयर्स हैं तो वो अपने आप को स्पेस के अंदर इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसके अंदर मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस हो. सो द शेप कम्स आउट, इट इज द प्लेनर. हम उसको लिखते हैं ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर. और जो बॉन्ड एंगल आता है दैट इज 120 डिग्री. ठीक है, जो तीनों बॉन्ड पेयर्स होते हैं दे आर अरेंज एट 120 डिग्री एंगल टू ईच अदर. दिस इज सेंट्रल एटम एंड द 3 बॉन्ड पेयर्स हाउ वी विल शो, one is this, one it is this and one it is this. यानी एक प्लेन के अंदर है. सपोज अगर हम इस बात करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल एटम है 1, 2 and 3. ट्राइगोनल प्लेनर, दे आर इन वन प्लेन. ओके, और एग्जाम्पल हमने लिखा इसका BF3AlCl3, और भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ओके, अच्छा, अब इसी कैटेगरी के अंदर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं वेयर 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट. सो 2 तो वहां पे क्या प्रेजेंट है आपके बॉन्ड पेयर्स एंड 1 इज प्रेजेंट, इट इज अ लोन पेयर. और इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं दिस SnCl2.
ठीक है, यानी आउट ऑफ दीज वन इट इज द लोन पेयर. सो वन ऑफ देम विल बी, अगर यहाँ पे लोन पेयर होगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी हैविंग दिस शेप ओनली, सो वी विल से इट इज हैविंग द बेंट शेप. ओके, अच्छा अब इसका अपन स्ट्रक्चर बना देते हैं. दिस इज द सेंट्रल एटम एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही वाले बता देंगे हम. ओके, एंड वन वी आर हैविंग दिस लोन पेयर. ओके, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी टू ई, दैट मीन्स आउट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो यहाँ पे क्या है, 3 है, ए बी 2, यानी 2 आर बॉन्ड पेयर्स एंड 1 इज लोन पेयर. तो 2 एटम्स जो है दे आर फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड एंड 1 ई इट इज रिप्रेजेंटिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अच्छा अब इसका जब इस तरह से अरेंजमेंट है, द शेप विल बी, इट्स शेप विल बी बेंट शेप, और उसका जो एंगल होगा इट विल बी 119.5. बेटा ये थोड़ा सा एंगल्स और ये जो शेप्स है ये हमें बिगनिंग के अंदर लर्न करने पड़ेंगे, देन इट विल बी क्लियर टू यू कि व्हेन देयर इज वन लोन पेयर प्रेजेंट, अगर इस एटम की जगह यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट था तो जो 120 एंगल होना चाहिए था, अभी हमने क्या कहा था, यहाँ पे बीच में एंगल कौन सा है इन सबके बीच में, इट इज 120. बट क्या हो रहा है कि बिकॉज वन लोन पेयर इज प्रेजेंट तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रिपेल करेगा. हियर ऑल्सो इट रिपेल्स, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड एंगल है वो यहाँ से रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल इट विल रिड्यूस, और 120 से रिड्यूस हो जाता है ये 119.5. सो लिटिल बिट इट गेट्स रिड्यूस. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी इफ देयर आर 4. ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो हमारे 4 है, और टाइप मॉलिक्यूल का कैसा है, AB4. ओके, हियर इट इज 4 I had written. Now AB4 that means it is having all the 4 bond pairs, जो चारों कोवलेंट बॉन्ड है, that is it is having the 4 bond pairs. लोन पेयर क्या है हमारे, 0 है. अच्छा इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, इट इज CH4, यानी इसके अंदर चारों के चारों जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है, एंड व्हेन ऑल द 4 बॉन्ड पेयर्स आर अरेंज्ड देन द शेप इट इज टेट्राहेड्रल. ठीक है, इसका जो शेप होता है बेटा, हमें 3D शेप देना है. आपके मन में ये आ सकता है कि मैम अगर 4 एटम्स 4 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है तो सेंट्रल एटम है, दैट मींस एट द 4 कॉर्नर्स दे शुड बी प्रेजेंट, बट इफ यू विल सी द एंगल बिटवीन देम इट विल बी ऑफ 90 डिग्री, एंड वी इन द बिगिनिंग ओनली वी हैड मेड इट क्लियर दैट दे अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज प्रेजेंट. तो वो जो 3 डायमेंशनल उसमें स्पेस में व्हेन दे अरेंज देमसेल्व्स द 4 बॉन्ड पेयर्स, तो जो सबसे जो स्टेबल ज्योमेट्री आती है दैट इज टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल को हम समझेंगे बेटा, सपोज दिस इज द सेंट्रल एटम, तो वहां पे 1 2 and 3, these are the 3 atoms which are attached to the central atom here मान के चलते हैं, and the fourth one it is here. So the angle between this it is 109.5 degree. The angle between each of them it will be 109.5, and it is the most stable state where they can present. ठीक है, अच्छा अब इसका हम शेप बनाते हैं. whenever we are drawing the tetrahedral shape आपको क्या ध्यान रखना है, this is the central atom, और आप 3 एंगल्स, जब 3 आप बॉन्ड पेयर्स बना रहे हो B and 1 like this, एंड इन सबके जो एंगल्स हैं इनके बीच के अंदर प्रेजेंट, this one, it is the 109.5 degree. Okay, now the next category, when out of this 4 electron pairs we are having the same, we are having 3 तो वहां पे bond pairs है, and 1 we are having the lone pair. So here we write 3 bond pairs and 1 lone pair. 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 हो गए हमारे बॉन्ड पेयर्स और 1 हो गया हमारा लोन पेयर. सो वी हैव रिप्रेजेंटेड इट लाइक दिस. ओके, अब इसका जो एग्जांपल होता है दैट इज अमोनिया. अभी कैसे प्रोडक्ट करते हैं दैट आल्सो आई विल टेल यू. अमोनिया जो है मॉलिक्यूल बेटा, एन इट इज सराउंडेड बाय 3 हाइड्रोजन एटम्स, दैट मींस इट इज हैविंग 3 बॉन्ड पेयर्स. ओके, नाइट्रोजन का जो वैलेंस होता है दैट इज 5, दैट मींस इट हैज फॉर्म 3 बॉन्ड्स. अब बचा एक इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट इज हैविंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो
3 and 1 4 total it is having 4 electron pairs, that means it is coming in this category. अच्छा 3 bond pairs है, 1 lone pairs है, so it arrange itself in the shape that is called as trigonal pyramidal. कैसे होता है शेप देखो, अभी मैंने बताया था टेट्राहाइड्रल है, सेंट्रल एटम यहाँ प्रेजेंट है 1 2 एंड 3, ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है 1 2 एंड 3, यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे हमने क्या कहा, एक यहाँ पे क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है, अब वो लोन पेयर हटा दिया आपने, तो शेप इसका क्या रह गया, इस तरह का पिरामिड जैसा शेप हो गया, और जो 3 हाइड्रोजन है वो इस तरह से प्रेजेंट है, तो इसका शेप होता है पिरामिडल, और पिरामिडल में भी कौन सा है, ट्राइगोनल पिरामिडल, बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 ग्रुप्स, सो इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा अब बिकॉज दिस इज द लोन पेयर, मैं इसको शेप को ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज central atom and we will show the 3 hydrogens, the 3 similar atoms, okay, एक यहाँ पे हमने लोन पेयर शो कर दिया। नाउ बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ये क्या होगा, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा, सो द बॉन्ड एंगल रिड्यूसेस, बेटा हियर जस्ट सी दिस वन, this is the shape for tetrahedral, okay, and this is the shape I had mentioned for trigonal pyramidal, और जो इसका shape हो जाता है it reduces to 107.5 और it is exactly 107, not 0.5, it is 107, 109.5 से reduce होकर bond angle क्या बन जाता है 107 और shape हो जाता है trigonal pyramidal, okay। अब इसी का एक और example ले लेते हैं, there we are having AB2E2, यानी देर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सेम कैटेगरी चल रही है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, फर्स्ट वी वर नॉट हैविंग एनी लोन पेयर, देन वी वर हैविंग 1 लोन पेयर, देन वी आर हैविंग 2 लोन पेयर, सो वी विल राइट हियर 2 2, 2 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर है। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे वाटर, ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, it is forming 2 covalent bonds, now how many remaining 4 electrons, so it is having 2 lone pair of electrons, okay। तो अब देखो 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 हो गए इसके पास लोन पेयर, सो इट इज कमिंग इन दिस कैटेगरी। अब इसका अगर हम शेप बनाते हैं तो आउट ऑफ दीज देयर विल बी 2 लोन पेयर, सो लेट्स ड्रॉ, this is the central atom and it is having only the 2 bond pairs, इसको ड्रॉ कर देते हैं, and this is the, sorry इसको अपन यही बनाएंगे, this is the lone pair and this is also the lone pair। अच्छा now if you are going to see the shape, इसका shape हमें क्या दिखाई दे रहा है, V or the band shape, so you will write down here for this one band shape or V shape, ओके okay? और बिकॉज देर आर 2 लोन पेयर्स तो अब इनमें रिपल्शन होता है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, देयर इज रिपल्शन, तो ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल बनता है ये फर्दर रिड्यूस हो जाता है टू 104.5 डिग्री, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल 109.5 से रिड्यूस होके क्या बन गया है 104.5, okay। So this was about the 4 electron pairs, we had seen if 0 lone pair electron is present the shape was tetrahedral, if 1 lone pair of electron is present the shape was trigonal pyramidal and bond angle reduced to 107, and if there were 2 lone pair of electrons present the shape becomes band shape and the bond angle further reduced to 104.5, so here we had discussed about the 3 cases when the electron pairs are 2 3 and 4, now let's see the further cases, I will just remove them so that we can write, students you need to practice of drawing their shapes, I will tell you the trick how to get the structures, how to write the names कि उनके जो shapes है वो क्या होंगे, है ना, that I will tell you, then we will discuss all the types, ठीक है, sure। Now we are going to see when the electron pairs are 5,
This will be our fourth number. Okay, when the electron pairs are 5. अब हमारे जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है. फर्स्ट केस, सिंपल केस, सिमेट्रिकल केस, व्हेन देयर इज नो लोन पेयर, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बी 5. ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर्स. दैट मीन्स बॉन्ड पेयर्स क्या है हमारे 5 हैं, लोन पेयर्स हमारे हैं 0. अब जब इस तरह का शेप होता है, एक सेंट्रल एटम है, उसके सराउंडिंग में आपको 5 अरेंज करने हैं, देन ऑलवेज द शेप इट इज, देखो, ट्राइगोनल, और एक ऊपर होगा. सपोज दिस इज अ सेंट्रल एटम, सो 3 विल बी इन वन प्लेन, जिनमें तीनों में एंगल होगा 120, वन ऑन द अपर साइड, वन ऑन द लोअर साइड. तो इसका शेप हम कैसे देंगे बेटा, दिस इज ट्राइगोनल, ऊपर भी है एक, नीचे भी है, सो इट विल बी बाय पिरामिडल. तो इसका शेप हम लिख देते हैं पहले, इट विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ठीक है, और जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल, वहां पे क्या होगा, 120 डिग्री और 90 डिग्री. आई विल टेल यू विच वन विल बी 120 एंड विच इज 90 डिग्री. और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज PCl5. ओके, ड्रॉ करते हैं इसका शेप. This is the central atom. Okay, now in a plane we have to show 3 groups. So we will show like this. These all 3 are in one plane, और इन तीनों के बीच का जो एंगल होगा, देखो थोड़ा सा इसको हमने इसको इस तरह से शो कर दे कि दे आर हैविंग द सेम एंगल, है ना. These 3 angles they are of 120 degree. Okay, 3 angles कितने हैं, 120 डिग्री के, and one is on the upper side and one is on the lower side. समझ रहे हो, ये सब एक प्लेन में नहीं है. This one and this one, they are on the upper side and the lower side, and these 3 are in one plane. Is it clear? The shape trigonal bipyramidal. 3 are in one plane around the central atom. One is on the upper side, one is on the lower side. So it forms the shape trigonal bipyramidal. Okay, and the example it is PCl5. I hope it is clear. Now we will move to the next category, जब वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है बट 1 लोन पेयर. सो वी विल राइट AB4E. एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है. यहाँ पे हमारे बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 4, और लोन पेयर कितने आ गया हमारा, 1. एंड हियर द एग्जाम्पल इट इज ऑफ SF4. बेटा देखो यहाँ से देख भी सकते हो, phosphorus, how many valence electrons are present in the phosphorus? It is having the 5 valence electron. Nitrogen family में आता है, it is having the 5 valence electron, and all the 5 electrons they are forming the bonds with the 5 Cl atoms. That means 5 valence electron है, and all of them are occupied, they are occupied with the 5 Cl atoms. वो form कर रहे हैं 5 covalent bonds. That means 5 bond pairs are present. Okay, and we had seen the story of the 5 bond pairs. अब अगर हम SF4 की बात करते हैं, as it is sulfur, it is coming in the oxygen family. That means it is having 6 valence electron. 4 are engaged in bond pairs and 1 lone pair of electron it is present. ओके, अब आप काउंट करोगे 4 and 1, टोटल कितने हो गए हमारे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं. दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, देखो 4 and 1, उसमें से 4 तो हमारे हैं बॉन्ड पेयर्स और 1 है हमारा लोन पेयर. सो दिस SF4 इट इज कमिंग इन दिस कैटेगरी. नाउ अच्छा, अब ये जो हमारी शेप्स हैं, इसमें से जब हम देखते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर वो यहाँ पे देखो, ये जो 3 बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर द एक्सियल बॉन्ड्स. ओके सॉरी, दीज 3 आर द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और ये जो ऊपर और नीचे वाला बॉन्ड होता है, दिस इज द एक्सियल बॉन्ड. ठीक है, ये तीनों बॉन्ड्स होते हैं एक्सियल, और ये जो ऊपर वाला नीचे वाला बॉन्ड होता है, दिस इज द एक्सियल बॉन्ड. और ये जो एक्सियल बॉन्ड होता है, ये थोड़ा सा लॉन्गर होता है बिकॉज ऑफ द मोर रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है, देखो यहाँ पे मैंने कहा PCl5, सेंटर में P है, 3 Cl एटम्स है एट 120 डिग्री. एक ऊपर की तरफ हमारा क्या है, 90 डिग्री एंगल पे हमारा एक Cl है और एक दूसरा है Cl अगेन एट 90 डिग्री. सो अब इनके अंदर रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है. एंड दिस इज द एक्सियल बॉन्ड, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ बिकॉज आगे हमें काम में आएगा. दिस इज द एक्सियल बॉन्ड and this is the equatorial bond. Okay, now
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेदर इट शुड बी प्रेजेंट एट द एक्सियल पोजीशन और इट शुड बी प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल पोजीशन. सो क्राइटेरिया का क्या है? व्हेनेवर वी आर डिसाइडिंग देयर पोजीशन, द क्राइटेरिया इट इज दैट दे शुड हैव मिनिमम रिपल्शन. वो अपने आप को इस तरह से ऑक्यूपाई करते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस हो. तो इट वाज ऑब्जर्व दैट if it is present at the equatorial position, then it gives the stable geometry. So the shape becomes like this. Let's draw. This is central atom. और सेंट्रल एटम के जो दो हमारे इक्वेटोरियल है बॉन्ड्स, वो तो एज इट इज रहेंगे. दो एफ यहाँ पे आ गए, ठीक है, एंड टू एफ दे आर प्रेजेंट ओवर हियर, 1 and 2 ये हमारे एक्सियल एज इट इज हो गए, एंड वन विच इज प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन, दिस इज ऑक्यूपाइड बाय अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब आप इसका शेप देखोगे तो ये आपका शेप कैसा दिखाई दे रहा है? आपको सीसॉ शेप दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? हियर इट इज लाइक दिस एंड इट इज हैविंग दीज टू बॉन्ड पेयर्स. सो अब यहाँ पे भी रिपल्शन होता है, ठीक है, रिपल्शन यहाँ पे भी होगा बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो ये जो शेप होता है दिस बिकम्स सी सॉ. अब हम इसका जो शेप लिख लेते हैं दैट इज फोल्डेड स्क्वायर या फिर सी सॉ. मोस्ट कॉमनली तो हम इसको सी सॉ शेप ही बोलते हैं बेटा. दिस इज सी सॉ. जो हमारा seesaw, you must have seen in the gardens there is a seesaw where whenever you see you used to play with that na, you used to sit on this seesaw or the folded square. आप square को fold जैसे करते हो. अगर आपको ये word लिखता है then it is nothing but it is the SF4 molecule which is showing the seesaw shape. और इसका अगर हम बॉन्ड एंगल लिखते हैं तो बॉन्ड एंगल बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो 120 रहेगा और यहाँ पे ये 90 डिग्री ही रहेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी फॉर दिस वन इट इज, अगर 5 में से 3 और 2 ले लेते हैं अपन, A, B, 3 एंड E, 2, ठीक है, यानी 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 3 एंड 2. एग्जाम्पल अपन लेंगे यहाँ पे ClF3 का. ओके, ClF3 क्लोरीन. वैलेंस में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 7 में से 3 तो ये बना रहा है बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर हो गए. फाइन. नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट? 4. दैट मीन्स 2 पेयर्स. तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2. यहाँ पे अपन शो कर देते हैं, यहाँ पे देखो 1 लोन पेयर एंड 1 लोन पेयर. सो ये आएगा किस कैटेगरी के अंदर? दिस वन 5. और 5 में से भी इट विल कम इन दिस कैटेगरी वेयर 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट. ओके, जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके अंदर बेटा, जब हमें कितने लोन पेयर्स दिखाने हैं? 2 लोन पेयर्स दिखाने, देन द शेप विल बिकम्स ऑलमोस्ट द टी शेप. इसका जो शेप हो जाएगा वो टी शेप हो जाएगा. वन ऑफ द इक्वेटोरियल अगेन इट विल पोजीशन विल बी ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर. उसको हम शो कर देते हैं यहाँ पे. दिस इज द सेंट्रल एटम. अब यहाँ पे हम 2 को लोन पेयर बना देंगे. यहाँ पे वन इट इज both the equatorial position will be occupied by the lone pair, and this is also lone pair, and this is the bond pair. This is the axial position as it is. ठीक है, अब देखो आप इसका शेप कैसा बन रहा है हमारा. दिस इज ऑलमोस्ट टी शेप. तो इसका जो मॉलिक्यूल का शेप होता है दैट इज रेफर्ड एज टी शेप. ओके, दिस इज कॉल्ड एज टी शेप. फाइन. नाउ अब इसी की एक और कैटेगरी हम ले लेते हैं और उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे. तो इट इज XCF2. ठीक है, अब इसमें कैटेगरी क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे दिस इज AB2E3. 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है. 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 3 लोन पेयर्स हैं. ठीक है, XCF2 मैंने लिखा है. दिस इज जिनॉन. जिनॉन क्या है? हमारा नोबल गैस है. दैट मीन्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 8 में से इट इज कंबाइनिंग विद 2 फ्लोरीन एटम्स. दैट मीन्स 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए. 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए. दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट. तो 3 पेयर्स 1 2 3 4 एंड 5 6. 3 लोन पेयर्स हो गए. काउंट करो 1 2 3 एंड 2. हाउ मेनी? 5. तो 5 आ रहा. दैट मीन्स इट इज कमिंग इन दिस कैटेगरी. और क्योंकि 3 लोन पेयर है सो इट इज पर्टिकुलरली कमिंग इन दिस कैटेगरी. अब इन 5 पोजीशंस में से अगर 3 लोन पेयर ड्रॉ करने हैं तो ऑल 3 विल बी देयर ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन. इसको ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम एंड द 2 बॉन्ड पेयर्स दे विल बी प्रेजेंट ऑन द एक्सियल पोजीशंस. And this is
द नेक्स्ट लोन पेयर। तो तीनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन, और जो बॉन्ड पेयर्स है दे विल बी समवॉट हियर एट द एक्सियल पोजीशंस। अब इसका जो शेप आता है दैट मीन्स ऑलमोस्ट लीनियर। इसका जो शेप आता है XCF2 का एग्जाम में कई बार ड्रॉ करने को आया है, दैट इज द लीनियर शेप। बट स्टूडेंट्स I will tell you one thing that in the 12th board when one question was asked about the ClF3 shape, what is the ClF3 shape? Draw the ClF3 molecule, ठीक है। तो वहां पे स्टूडेंट्स ने क्या किया, there they had shown chlorine and this F, और यहाँ पे F शो किया और यहाँ पे F शो किया। It was not given any mark. Why? Because lone pair of electrons were not mentioned. So you have to explain the lone pair presence also. You have to show the presence of lone pairs also. Then you will get the full marks. Okay. Now we will relate the different examples when the number of electron pairs will be 6. Let's rub this one. Students, I hope you must have understood about the different shapes. For me, though, this topic, it is very interesting. I really enjoyed when I used to study this topic. When you will do different types of questions predicting their shapes, then you will really enjoy how to guess their shapes. I will discuss various examples also. Let's do the last category, that is the fifth one about the six इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट मीन्स AB6। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल हो जाएगा, फिफ्थ कैटेगरी हो जाएगी, जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने प्रेजेंट है, 6। इसमें 3 केसेस आएंगे, व्हेन फर्स्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर्स एंड नन ऑफ देम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, और इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे SF6। ठीक है, SF6 देख लेते हैं बेटा, हाउ इट इज कमिंग इन दिस कैटेगरी। सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है and all the 6 valence electrons they are forming covalent bond with 6 fluorine atoms, that means none of their electron is present in the form of lone pair, so it is going to show the regular geometry, symmetrical geometry। देखते हैं कैसे प्रेजेंट होगा। अगर 6 bond pairs present है तो how they are present, suppose this is a plane, central atom A है, 4 atoms will be in one plane at an angle of 90 degree, one will be upper side, one will be on the lower side, and this shape is called as octahedron। ठीक है, जैसे हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप पढ़ा था, सेंट्रल एटम था, 3 वर इन द सेम प्लेन, one was above, okay, and one was below। Here we are having central atom in a plane and 4 groups, 4 atoms, they are present in one plane, one atom is above and one atom is below, and this shape it is called as octahedral। ओके, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम है। अब इसके सराउंडिंग में हमको 6 बॉन्ड पेयर शो करने हैं। तो फर्स्ट दिस बॉन्ड पेयर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सब एक ही प्लेन में है। ठीक है, वन इट इज अबव एंड वन इट इज बिलो, ये थोड़ा सा लॉन्गर होगा, है ना बेटा। अच्छा, अगर आप शेप देखोगे बुक के अंदर इनको ज्वाइन कर रखा है। आई एम नॉट शोइंग दीज शेप्स ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे, सो आई एम नॉट शोइंग दीज डिफरेंट लाइंस। आप समझ लो 4 आर इन वन प्लेन, वन इज अपर साइड, वन ऑन द लोअर साइड, सो दिस इज कॉल्ड एज एन ऑक्टाहेड्रल शेप। अब इसके अंदर आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इफ यू आर हैविंग अ टाइप AB5 and one lone pair of electron, that means bond pairs हो गए हमारे 5, lone pair of electron हो गया हमारा 1, और इसका एग्जाम्पल हम लेंगे ClF5। ओके, क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 7, 7 में से 5 दे आर फॉर्मिंग द बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, 5 हमारे पास बॉन्ड पेयर आ गए, कितने रिमेनिंग रहे वहां पे 2, दैट मीन्स 1 पेयर। ओके, यहाँ पे अपन शो कर देते हैं। तो टोटल 5 + 1 6,
6 आते हैं हमें पता चल गया इट इज कमिंग इन दिस कैटेगरी, और उसमें भी एक लोन पेयर है, सो इट इज अ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, इट इज नॉट गोइंग टू शो द रेगुलर ज्योमेट्री, ये कोई डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री शो करेगा। अब इन 6 पेयर्स में 6 ग्रुप में से इफ वन ऑफ द पोजीशन इट इज ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर, then it obviously it is going to be a distorted shape. So let's draw that one. This is the central atom, and one of the position we will show this one D. All the 4 similar atoms, they are in one plane, and this one we are showing the lone pair, and the 5th one it is here. ठीक है, अब देखो शेप कैसा है, ये चारों तो एक प्लेन में है, ये नीचे की तरफ है, इट इज ऑन द लोअर साइड, एंड वन इट इज द लोन पेयर। अब इसका शेप आप देखोगे तो कैसा होगा बेटा, यहाँ पे सेंट्रल एटम है, 4 एटम्स आर देयर, और एक वन वहाँ पे नीचे से है, तो वहाँ से कनेक्टेड है, तो आप क्या कहोगे, पिरामिडल टाइप का शेप बन रहा है। और पिरामिडल में भी यहाँ पे कौन से है, स्क्वायर, 4 है। व्हेन आई वाज गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ अमोनिया, वहाँ पे मैंने कहा था ट्राइगोनल पिरामिडल, बिकॉज वहाँ पे 3 ग्रुप्स थे। अब यहाँ पे 3 इंस्टेड ऑफ 3 वी आर हैविंग 4 ग्रुप्स, 4 एटम्स इसको आप बोल दो, तो इट्स शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल। इसका शेप जो होगा वो होगा स्क्वायर पिरामिडल। ओके, इसका शेप बन जाएगा हमारा स्क्वायर पिरामिडल। अब अपन लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वेयर AB4E2, 6 है, 4 and 2 6, so it is coming in this category, but 6 में से यहाँ पे 4 हमारे बॉन्ड पेयर्स है एंड 2 हमारे लोन पेयर्स है, और इसका जो अच्छा सा एग्जांपल इन्होंने दे रखा है दैट इज HCF4। HCF4, Hc, xenon, it is having the 8 valence electron. Out of 8 valence electron, 4 are forming the covalent bonds with the 4 fluorine atoms. यानी 4 bond pairs of electrons इसमें present है। Remaining कितने electrons है बेटा यहाँ पे, 4, that means 2 pairs. Draw कर देते हैं 2 electron pairs को, 1 and 2. Count करो, 4, 5 and 6. Total electron pairs होगा, it is having 6. And out of 6, 2 lone pairs and 4 bond pairs. देख लो यहाँ पे 2 lone pairs and 4 bond pairs. When we are having this type of structure, when we have to give the shape of this type of molecule, where 4 bond pairs and 2 lone pairs are present, then we will show the 2 lone pairs on the upper and the lower side, and its shape will be square planar. कैसे हो जाएगा, देखो shape A and 2 lone pairs on the upper side and the lower side. हम इसको शो कर देंगे, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। और इसका जो नाम होता है इट इज स्क्वायर प्लेनर। एक ही प्लेन में स्क्वायर शेप के अंदर प्रेजेंट है, सो दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर प्लेनर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द VSEPR थ्योरी, एंड वेरी क्विकली स्टूडेंट्स आई विल टेल यू द वे हाउ टू डिड्यूस द शेप। कैसे हम फटाफट से बताएंगे, इफ इन द एग्जाम इट कम्स आउट कि व्हाट इज द शेप ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स, आप कैसे उनको प्रिडिक्ट करोगे। लेट्स सी दैट। सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ClF3 का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या फिर आप कैलकुलेट कर दो बॉन्ड पेयर्स, सबसे पहले इजी रहेगा बॉन्ड पेयर्स, या सब उससे भी पहले स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, क्लोरीन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, 7, ओके। अच्छा, जितने भी ग्रुप्स अरेंज है, अटैच्ड है, इससे एटम्स अटैच्ड है, उसको आप काउंट कर लो, 3 एटम्स अटैच्ड है, तो हमारे बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए इसके अंदर, 3, ठीक है। अब 7 में से आपके 3 बॉन्ड पेयर्स की फॉर्म में अटैच है, तो 7 - 3 आप क्या कर दोगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 7 में से 3 माइनस करोगे, ठीक है। 7 में से हमने 3 माइनस कर दिए, तो हमारे पास क्या बचे, 4, दैट मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 2, ओके। अब आप ऐड करो 3 and 2, 3 + 2, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इट विल गिव यू द इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर हमारे प्रेजेंट है 2, बॉन्ड पेयर हमारा प्रेजेंट है 3, इट गिव्स आउट 5,
तो 5 आते ही दिमाग में हमारा हो जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 3 एक प्लेन में और एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री आई एम टॉकिंग अबाउट। बट इफ इट इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑफ कोर्स ज्योमेट्री जो होगी वो डिस्टॉर्टेड होगी। अगर एक आता था तो शेप हमारा था सीसॉ, अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे तो हमारा शेप क्या हो गया था वहां पे, टी शेप। तो हम कह देंगे यहाँ पे जो शेप हो जाएगा भाई दैट इज द टी शेप। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं BRF5, BRF5 ब्रोमीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 7 अगेन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके अंदर, BRF5 है तो बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए हमारे 5, लोन पेयर 7 - 5 2 दैट मीन्स 1 पेयर। बेटा इस चीज का ध्यान रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है दैट मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी आर टॉकिंग अबाउट लोन पेयर, सो इट विल बी 1 पेयर। अब यहाँ पे हम देखेंगे इफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए हमारे, 5 + 1 6, आउट ऑफ 6 वी आर हैविंग 1 लोन पेयर। अगर 6 होते तो हमने यहाँ डिस्कस किया था इफ द 6 बॉन्ड पेयर्स वर देयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है और 6 के 6 अगर बॉन्ड पेयर है तो शेप वाज ऑक्टाहेड्रल, बट हियर 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट सो द शेप विल बी दिस वन, स्क्वायर पिरामिड। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम O3, ओजोन, ठीक है। ओजोन दैट मीन्स इट इज हैविंग द, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट्स फ्लूइड स्ट्रक्चर, वी हैड कैलकुलेटेड द फॉर्मल चार्ज एंड वी हैड सीन दैट इट वाज हैविंग द स्ट्रक्चर लाइक दिस, है ना। अब अपन इसके एग्जैक्ट शेप निकालते हैं, व्हाट कैन बी द शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। जो सेंट्रल एटम है इट इज हैविंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, 6 होते हैं। नाउ इट इज अटैच्ड विद 2, बेटा यहाँ पे ये ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो दे आर कंसिडर्ड एज अ बॉन्ड पेयर्स ओनली, है ना। सो इट इज अटैच्ड विद 2 एटम्स, सो द बॉन्ड पेयर्स इट इज 2। ओके, बॉन्ड पेयर्स इसके पास 2 है and we had seen that it was having 1 lone pair of electron. देखो 6 - 2 then it is having 6 - 2 then it was having the this one 6 यहाँ पे valence electrons थे and it was combining with 2 groups, 2 atoms. Okay, अब यहाँ पे जो lone pair of electron है that means it was having 1 lone pair of electron। अगर आपने structure याद हो, shape याद हो तो यहाँ पे जो lone pair of electron था वो कितने थे यहाँ पे, 1 2 और 1 दैट मीन्स यहाँ पे 1 2 और 3 शेप्स हैं यहाँ पे, सॉरी ग्रुप्स हैं। अब 3 में से अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ पे तो हमने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर तो कितने प्रेजेंट है 3 और एक लोन पेयर आ गया था तो उसका शेप कैसा हो गया, बैंड शेप। ओके, so it is having out of this oxygen it is having 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 इसने बॉन्ड पेयर्स शो कर रखे हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसके ऊपर एंड दिस इट इज हैविंग द बैंड शेप। इसी तरह से एक एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया इट इज हैविंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 एटम्स के साथ कंबाइन है सो इट विल बी 3। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, बिकॉज 5 - 3 आप करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 2, सो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना प्रेजेंट हो गया बेटा यहाँ पे, 3 + 1 4, सो इट मस्ट बी टेट्राहेड्रल, बट क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है तो डिस्टॉर्टेड होगी और शेप क्या हो जाएगा अपना, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, so in this way you can predict the shapes. Students, I had completed the VSEPR theory and now it is your turn to practice the various questions. Thank you and goodbye.